صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ پاکستان پرامن اور خود مختار ایٹمی ریاست کے طور پر اپنے دفاع پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا۔ یوم تکبیر پر ہم اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ وطن کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ بھارتی ایٹمی بلیک میلنگ کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ غیر معمولی صلاحیتوں حب الوطنی کے جذبے نے دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم اور فیصلہ کن دن ہے۔ ایٹمی پروگرام کے معماروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دھمکیوں کے باوجود نواز شریف نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا تھا۔ ایٹمی قوت نہ بنتی تو دشمن ہر سرحد ہر حد پار کر سکتا تھا۔ اور اب بات کریں گے یوم تکبیر پر مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کی قوم کو مبارکباد۔ یوم تکبیر تاریخ کا کارنامے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ اس دن پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ یہ عظیم سنگ میل قومی اتحاد، استقامت اور ملکی خود مختاری کی علامت ہے۔ یہ دن علاقائی سالمیت اور قومی وقار کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ یہ تاریخی کامیابی مدبر قیادت، سائنسدانوں، انجینئرز کی غیر معمولی خدمات کی بدولت ہے۔ یہ کامیابی پاک افواج اور پاکستانی قوم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ یوم تکبیر پر مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کی قوم کو مبارکباد۔ یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ اس دن پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ یہ عظیم سنگ میل قومی اتحاد، استقامت اور ملکی خود مختاری کی علامت ہے۔ یہ دن علاقائی سالمیت اور قومی وقار کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ یہ تاریخی کامیابی مدبر قیادت، سائنسدانوں، انجینئرز کی غیر معمولی خدمات کی بدولت ہے۔ یہ کامیابی پاک افواج اور پاکستانی قوم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ یوم تکبیر پر مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کی قوم کو مبارکباد۔ بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ کوٹری ریلوے اسٹیشن پر مال بردار ٹرین کی 5 بوگیاں ٹریک سے اتر گئی ہیں۔ دلدار جانوری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ دلدار آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی، یہ کوٹری ریلوے اسٹیشن کے قریب مال بردار گاڑی کی 5 بوگیاں ٹریک سے اتر گئی ہیں۔ یہ گاڑی جو ہے وہ یوسف والا سے پنجاب سے کراچی جا رہی تھی، تو ریلوے اسٹیشن کوٹری کے قریب ٹریک سے 5 بوگیاں اتر گئی ہیں، جس کے باعث ٹریک شدید متاثر ہوئی ہے۔ ڈاؤن اسپیڈ کی جو ٹرینیں ہیں وہ معطل ہو گئی ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ اس کا گزرنا مشکل ہے، جس کے باعث متبادل راستے سے ان ٹرینوں کو جو ہے وہ کراس کرایا جائے گا، جبکہ ریلوے حکام کا یہ کہنا ہے کہ 5 گھنٹوں کے اندر جو ہے ٹریک کے کام کو مکمل کر دیا جائے گا۔ تاہم اب تک جو ہے وہ ڈاؤن ٹریک جو ہے وہ متاثر ہے۔ جی اچھا، جانی نقصان ہوا اس میں؟ کوئی بھی جانی اس میں نقصان نہیں ہوا ہے، جبکہ بوگیاں جو ہے وہ اتنی ٹریک کا بڑا نقصان ہوا ہے اور جو ہے وہ جانی جو ہے محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ دلدار جانوری تفصیل آگاہ کرنے کے لیے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایران کے ساتھ برابری پر چل رہی ہیں، ایران معاہدے کے لیے بے قرار ہے، ابھی ایران ڈیل حاصل نہیں کر سکا۔ ہم مطمئن نہیں، ہم مطمئن ہوں گے اور کام مکمل کر لیں گے۔ 1000 بار کہہ چکا ہوں، ایرانی بحریت تباہ ہو چکی، ان کی فضائیہ ختم ہو چکی، ہر چیز ختم ہو چکی۔ مذاکرات میں ایران کی پوزیشن کمزور ہے، ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مجھے کمزور کر لیں گے، وہ ایسا نہ کر سکے۔ مجھے مڈ ٹرم الیکشن کی کوئی پرواہ نہیں۔ Really equally as well. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1000 times, and their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. امریکہ ایران کی بحر ناکہ بندی ختم کرے گا، ایران کے اطراف موجود اپنی فوجی دستے واپس بلائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ، کہا امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے ابتدائی فریم ورک کے چند نکات حاصل ہو گئے ہیں، نکات میں اہم بحری اور عسکری شقیں شامل ہیں۔
ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि उसे अमेरिका ईरान जंग बंदी के इब्तिदाई फ्रेम वर्क के मुसव्वदे के चीदा नुकात हासिल हो गए हैं। ये मुसव्वदा मुबैना तौर पर मुफाहमत की याददाश्त से मुताल्लिक है। इब्तिदाई फ्रेम वर्क के मुताबिक ईरान 1 माह के अंदर आबनाए हुर्मुज में तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त को जंग से पहले की सतह पर बहाल करेगा। फौजी बहरी जहाज इस मुजव्वजा फ्रेम वर्क का हिस्सा नहीं। ईरान ओमान के ताउन से आबनाए हुर्मुज में जहाजों की आमदोरफ्त का इंतजाम करेगा, ताहम ईरान ठोस तस्दीक के बगैर कोई कदम नहीं उठाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अगर 60 दिन में हतमी मुआहिदा तय पा जाता है तो उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक पाबंद करारदाद के तौर पर मंजूर किया जा सकता है। व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट को मनगढ़ंत करार देते हुए कहा कि जंग बंदी फ्रेम वर्क से मुताल्लिक ईरानी सरकारी का दावा गलत है। वाशिंगटन और तेहरान में से किसी ने भी किसी हतमी मुआहिदे की तस्दीक नहीं की है और ये फ्रेम वर्क ताहाल गैर मुसद्दिका है। ईरानी सरकारी टीवी की रिपोर्ट के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल से भी कम हो गई। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में अफज़ोदा यूरेनियम पर बातचीत एजेंडे में शामिल नहीं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाकर कहना है, ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता राब्ते अब भी जारी हैं। जब तक तमाम मामलात पर इत्तफाक नहीं हो जाता, किसी मुआहदे को हतमी नहीं समझा जाएगा। ईरान और ओमान आबना हुर्मुज में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए नए तरीक़ेकार पर बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में 30 मिनट से ज़ायद दोस्ताना गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तशक्कुर का इजहार किया। ईरानी सदर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सऊदी अरब, कतर, तुर्की और दीगर इलाकाई मुल्कों का अमन कोशिशों में शरीक होना काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मौजूदा बहरान में कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी सदर से फिर इज़हार यकजहती किया। नवाज शरीफ ने मुझे वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की, मैंने इनकार कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी बड़ी है, शौकिया ओहदा ले लेता तो बाद में लोग गालियाँ देते। एंकर मोहम्मद मालिक के नहर में डुबकी लगाने के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने दिलचस्प तबसरा किया। इसके आपको प्राइम मिनिस्टरशिप भी ऑफर हुई, मियाँ साहब ने की। उन्हें यार मेरे वास्ते रोक नहीं सी, टू मच फॉर मी, फिर जिम्मेदारी बड़ी है। मैं शौकिया ले लेंदा हैगा, बाद ही तुसी गालां कढ़नियां सन मैनूं ਇੱਥੇ बैठ के तो जी वो प्राइम मिनिस्टर बनया सी तो मैं शौकी बन गया। मुझे उसके बाद भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मियाँ साहब ने he has been very kind to me। शहबाज शरीफ के साथ मैं लड़ भी पड़ता हूँ। नहरों में छलांगे क्यों मारते फिरते हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है? पानी आ रहा है हुण ते मैं ऐस दी छुट्टियां जगह पानी पूरा होया ते जावांगा। डुबकी नहर च छलांग लाण दा मतलब होंदा है बंदे ने बाहर भी वापस आना है। जिवें जिवें उम्र वधदी है खतरा वध जाता है कि वापस आना जरा मुश्किल नहीं। मैं पिछले साल वापस आया, इंशाल्लाह इस साल भी वापस आवांगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ से टेलीफोनिक रब्ता। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खिदमात, कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। वज़ीर आज़म ने कहा, ईद के मौके पर भी वतन अजीज़ के दिफा का फरीज़ा अंजाम देने वाले सपूत कौम का फ़ख्र हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सर्विसेज चीफ्स ने भी वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अस्करी क़यादत ने इस अज़म का इयादा किया, अफ़वाज पाकिस्तान वतन अजीज़ के दिफा और सलामती के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने सदर समेत मुख्तलिफ हुकूमती, आइनी और सियासी शख्सियात से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। सदर आसिफ जरदारी को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर से भी टेलीफोन पर बात की। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला को भी ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, अलीम खान, खालिद मक्सी, आफ्ताब शेरपाओं से भी गुफ्तगू की। कहा, अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेंगे।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के ज़िला जोब में मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। कहा, बुज़दिलाना हमले हमारा अज़म कमज़ोर नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के अवाम के साथ मिलकर दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों का ताक़ुब जारी रखेंगे। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बलूचिस्तान के जिला जोब पहुंचे। मगरबी सरहदों पर फ्रंट लाइन पर तैनात फौजियों के साथ ईद उल अजहा मनाई। नमाज ईद के बाद पाकिस्तान के पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। फील्ड मार्शल ने अफसरों और जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। उनके गैर मामूली अज़्म, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए साबित कदमी को सराहा। भारतीय सरपरस्ती में फितनाल हिंदुस्तान और उसके प्रॉक्सियों की कोयटा में बुज़दिलाना दहशतगर्दी पर फील्ड मार्शल ने कहा, इस तरह की गैर इंसानी और सफ़ाकाना कार्रवाइयाँ मुसल्लह अफवाज या कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। उन्होंने जोर देकर कहा, अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के हौसले और अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के तमाम सहूलतकारों, उनकी हौसला अफजाई करने वालों और मुजरिमों का पूरी कुव्वत के साथ ताक़ुब जारी रखेगी। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। मादर वतन के दिफा में शहादत को गले लगाने वाले धरती के बहादुर बेटों को खिराज अकीदत पेश। हाफिज नईम साहब, ईद का मौका है, आपको खाने भी मिल गई होंगी और कलेजी भी। बराए मेहरबानी बकरे की कलेजी खाएं, अवाम के कलेजे ना खाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की RY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हम काम कर रहे हैं, घालों के रेट्स का MQM या अल खिदमत से पूछें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई के इंतजामात का जायज़ा लिया। अब होता है तो कहते हैं जी सॉलिड वेस्ट फेल हो गया, KMC फेल हो गई, पीपल्स पार्टी फेल हो गई। यही जब शाम को सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो जाएगी तो कहेंगे यार वो हमारे टाउन वालों ने या हमारी अल खिदमत ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। तो मैं नईम साहब को सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूँगा कि छोड़ दीजिए इन बातों को। आज ईद का दिन है, आपके पास खाले भी आ गई होंगी और कलेजियाँ भी आ गई होंगी। बकरे की कलेजी खाए, आवाम की कलेजी से दूर है। बाकी जो खालों के रेट हैं ये या तो खिदमत खल्क वालों को पता होता है या अल खिदमत वालों को पता होता है। हम जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो तो मैदान में जो एक्चुअल काम है उसमें लगे हुए होते हैं। बाकी ये कीमतें वगैरह जो है ये चंदे वाली जो पार्टियाँ हैं उनसे पूछे, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है।